नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे के बाद मैंने जो अभी आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इसका माना और मतलब समझने से पहले आइए हम और आप मिलकर अपने आप का मौला सरकार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशआर है। समात करने से पहले एक मर्तबा और जी लगा कर के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िक्र नबी जो करते ज़िक्र खुदा के साथ, ज़िक्र नबी जो करते हैं, ज़िक्र खुदा के साथ, जन्नत में वो मुस्तफा के साथ, ज़िक्र नबी जो करते हैं, ज़िक्र खुदा के साथ। कुर्बान हो गया जो कुर्बान हो गया जो दीने रसूल पर, जन्नत में वो रहेंगे शहे करबला के साथ, ज़िक्र नबी जो करते ज़िक्र खुदा के साथ। पलटा तो मुस्कुरा कर सरदार ने कहा, कौन पलटा? पलटा तो मुस्कुरा कर सरदार ने कहा। कौन पलटा है? सूरज। सुभान अल्लाह। सूरज पलटा है ना। पलटा तो मुस्कुरा कर सरदार ने कहा, सूरज की दोस्ती है अली मुर्तज़ा के साथ, ज़िक्र नबी जो करते हैं, ज़िक्र
ہے آرزو کے نعت نبی عمر پر پڑے آقا، ہے آرزو کے نعت نبی عمر پر پڑے، تاکہ ہمارا حشر ہو احمد رضا کے ساتھ، ہے آرزو کے نعت نبی عمر پر پڑے، تاکہ ہمارا حشر ہو مرشد پیا کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ، محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قدا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے۔ محفل کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ 1000 آدمی ہوں گے تو ہی محفل گنتی میں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ محفل کے اندر 5 آدمی بھی ہے تو اللہ کے نبی کی محفل سج جاتی ہے۔ اور محفل کے اندر یہ نہیں ہوتا بھائی کہ 1 گھنٹے کی میلاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ سب لوگ مل کر صرف اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا شمار محفل میں کر دیتا ہے، محفل میں کر دیتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، محفل میلاد کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہونا ہے نا، پیدا ہونا عربی میں کہتے ہیں ولادت، میلاد اس کو پیدائش کو میلاد کہتے ہیں۔ اس کے لیے تو ہم یہاں کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنے۔ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے چچا ہے، میرے آقا کے چچا ہے، ایک دن اپنے مکان کے اندر بیٹھے تھے، اپنے مکان کے اندر بیٹھے تھے، اپنے پریوار کو لے کر کے، گھر فیملی کو لے کر کے بیٹھے تھے اور کہتے تھے میرے آقا ایسے ہے، میرے آقا ایسے ہے، میرے آقا چاند کی طرف اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، میرے آقا سورج کو اشارہ کرے سورج واپس آ جائے، میرے آقا کڑوے کنویں میں اپنا لواب دہن ڈالے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ بس یہ تعریف کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے سنا کہ میرے چچا جان کیا کر رہے ہیں، پھر بھی پوچھا چچا جان کیا کر رہے ہو؟ بولے حضور آج آپ کی ولادت کا دن ہے، میں گھر والوں کو بتا رہا ہوں میرے نبی ایسے ہیں، میرے نبی ایسے ہیں۔ تو میرے آقا خوش ہو گئے اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے چچا جان
جو سناتا ہے جو سنتا ہے ان سب پر میری شفاعت واجب ہے۔ جو سناتا ہے اور جو سنتا ہے ان سب پر میری شفاعت واجب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہے نا؟ نبی کے بغیر خدا کی تعریف کرو تو ادھورا رہ جاتا ہے، رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کسی کے دماغ میں ہو تو بتا دے کہ نہیں ادھورا نہیں رہتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں خالی لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کچھ نہیں، خالی لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کچھ نہیں، اور محمد الرسول اللہ جب تک نہیں پڑھو گے وہاں تک کلمہ پورا ہی نہیں ہوتا، وہاں تک کلمہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ جب کلمہ پورا نہیں ہوتا تو تم عبادت کرتے ہو، اور عبادت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرو گے تو تمہاری عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ تمہاری عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آپ قرآن شریف کے پہلے سپارے کا دوسرا رکوع آپ پڑھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے اللہ کے حبیب، ہم خدا کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پوری آیت نازل فرما دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ، اے میرے محبوب یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اے میرے محبوب یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، نہ کسی کو مانتے نہیں ہے وہ، اگر مجھے مانتے تو کہہ دیتے ہم نے تو اللہ کے حبیب کو دیکھا اس کے بعد خدا کو مانا ہے، ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا اس کے بعد ہم نے خدا کو مانا ہے۔ تو کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تم خدا کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ خدا کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ صرف اللہ کے حبیب کی تعریف کیا کرتے ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ مائک کی تعریف کر رہا ہوں، مائک کی تعریف کر رہا ہوں، یہ رومال کی تعریف کر رہا ہوں، تو جہاں رومال بنانے والا بیٹھا ہو تو خوش ہو جاتا ہوں، خوش ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ میں مائک کی تعریف کر رہا ہوں۔ ابھی میں کہہ دوں کہ مائک بہت اچھا ہے، آواز بہت اچھی ہے، بھائی میں تو مائک کو کہہ رہا ہوں، مائک والا خوش ہو رہا ہے، مائک والا خوش ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کی تعریف کرتے ہیں، میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے معلوم ہے؟ اے محبوب میں نے تجھے ایسا بنایا ہی ہے، میں نے تجھے ایسا بنایا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے بہت بڑے ہیں۔ ایک آپ کو میں بتاؤں درود پاک کے متعلق بتاؤں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد قدا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کیا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہے، میرے آقا کے چچا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
चचा थे वो भतीजे थे, चचा थे वो भतीजे थे, मगर क्या कहते हैं मालूम है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ये नहीं कहा कि बचपन की बात मत बोलना हो भाई, मैं बड़ा हुआ जब की बात बोल, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला मालूम है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जब झूले में सोए हुए थे, आप जब झूले में सोए हुए थे तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप बता दे आप बातें क्या कर रहे थे और किसके साथ बातें कर रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये न कहा कि ये तो बचपन की बात है, काहे को पूछते हो, वो तो मुझे मालूम नहीं है, ऐसा मेरे आका ने ना कहा, लेकिन कहा कि चचा जान सुनो, जब मैं झूले में सोया हुआ था मेरे पालने की रस्सी को खींचा गया, जब पालने की रस्सी को खींचा, झूले की रस्सी को खींचा तो मेरा बदन कस गया, मेरा बदन थोड़ा दब गया। कसने की वजह से मुझे जिस्म में तकलीफ आई और उसी तकलीफ की वजह से मेरे आंख से आंसू निकलने ही वाले थे। इतने में चांद और सूरज मेरे सामने आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह आप चाहे तो हम आपके खिलौने बन जाए, आप चाहे तो हम आपके खिलौने बन जाए, मगर आप अपनी आंख से आंसू ना निकाले, क्योंकि आपकी आंख का आंसू निकल गया और जमीन पर गिरा तो कयामत तक अल्लाह ताला जमीन पर कोई सब्ज नहीं उगाएगा। बस मैं चांद और सूरज के साथ ये बातें कर रहा था, ये बातें कर रहा था। तो आपके चचा जान क्या कहते हैं मालूम है, सद्दक़तनी या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा वो सच कहा। जब चाचा को खुश देखा मेरे आका ने कि चाचा खुश हो गए, ताज्जुब से हाथ मलने लगे, तो मेरे आका ने देखा कि चाचा और एक बात बताओ, बोले बताओ या रसूल अल्लाह। बोले ये तो मैं झूले में था, ये तो मैं झूले में था, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के शिकम में था। तो माँ के शिकम में रहकर चांद और सूरज जब गुरूब होते थे और अर्श के नीचे रब की बारगाह में सजदा करते थे, उस सजदे की आवाज को मैं अपनी माँ के शिकम में सुन लिया करता था। तो आपके चचा जान ने कहा सद्दक़तनी या रसूल अल्लाह, आपने बहुत सच्ची बात बताई। मेरे आका ने देखा चचा जान और खुश हो गए, तो मेरे आका ने फरमाया और ताज्जुब की बात बताओ, और ताज्जुब की बात बताओ। बोले हुजूर बताइए। तो मेरे आका ने फरमाया जब मेरी विलादत हुई, ईद मिलादुन नबी, जब मेरी विलादत हुई उस वक्त अल्लाह ताला ने सातों आसमान पर, एक आसमान पर एक पहाड़, दूसरे आसमान पर दो पहाड़, एक पहाड़, इसी तरह से अल्लाह पाक ने सातों आसमानों पर 7 पहाड़ बनाए और एक एक पहाड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने लातादाद फरिश्तों को बिठाया और वो फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्दो सना करते थे, अल्लाह के हबीब पर दरूद पाक पढ़ते थे। तो चचा जान ने कहा, बोले हुजूर जब लातादाद फरिश्ते हैं तो उनकी इबादत भी लातादाद हुई। मेरे आका ने फरमाया हाँ उनकी इबादत भी लातादाद हुई, लेकिन ऐ चचा जान सुन लो, अल्लाह ताला उस फरिश्तों की इबादत का सवाब उस शख्स के नामे अमाल के अंदर लिखता है जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप सोचेंगे कि एक तो पालने की बात बताई, झूले की बात बताई, दूसरे माँ के शिकम की बात बताई और तीसरे विलादत की बात बताई। माँ के शिकम में और एक झूले में, झूले में जो बच्चा होता है महीने का होता है, 2 महीने का होता है ना। अब हमको तो ताज्जुब लगता है कि ये बच्चा किस तरह से बात कर सकता है, बच्चा
किस तरह से बात कर सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सैयदना ईसा अलैहि सलातु व सलाम अल्लाह के नबी है। ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी है। आप 3 दिन के थे और बात करी 3 दिन के, क्योंकि अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालिदा, आपकी माँ का नाम बीबी मरियम, बीबी मरियम। तो बीबी मरियम सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, न मेरी शादी हुई, न किसी ने मुझे टच किया, न किसी ने मुझे छुआ, अरे अल्लाह मैं हामिला हो गई, मैं किसी को जवाब क्या दूंगी? तो मेरा रब फरमाता है औलाद देना मैं जानता हूँ तो जवाब देना भी मैं ही जानता हूँ। अरे मरियम तू फिक्र ना कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, 3 दिन की उम्र बताते हैं, कोई 1 दिन की बताता है, कोई 1.5 दिन की बताता है, कोई 3 दिन की, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं है, 3 दिन से ज्यादा नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो लोगों ने ताना दिया, बीबी मरियम ये बच्चा लाई कहां से? तो बीबी मरियम क्या कहती है मालूम है? मेरे रब मैं क्या जवाब दूं, लोगों को क्या जवाब दूं? तो अल्लाह पाक ने कहा कि मरियम फिक्र ना कर, तुझसे कोई पूछे कि ये बच्चा कहां से आया और किसका बच्चा है, तुझसे कोई पूछे तो ऐ मरियम तू बच्चे की तरफ इशारा कर दे। बोले मुझसे ना पूछो, बच्चे से पूछो कि तू कौन है और कहां से आए। कहने लगे लोग अब तो जो अपनी ऐब छुपाने के लिए बच्चे की तरफ इशारा कर रही है। लोगों ने कहा पूछ के तो देखो बच्चे को। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि ऐ बच्चे तू कहां से आया और तू कौन है? अब मैं आपके सामने कुरान पाक पढ़ता हूँ। 3 दिन की उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं मालूम है? इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, यानी मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे नबी बना करके भेजा है और मुझे एक किताब लेकर के भेजा है। तब पता चला इतना छोटा सा बच्चा। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली तो मेरे नबी के सदके में मिली है ना भाई, मेरे नबी के सदके में मिली है। तो भी 3 दिन की उम्र में बातें करते हैं, तो जिसके सदके में पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने बनाया, क्या वो पावर नहीं रखता? अरे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वो पावर रखते थे, अगर कोई नाबीना होता, कोई अंधा होता, नाबीना होता, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी आंख पर हाथ रख देते, अल्लाह उसे बिनाई अता फरमाता था। अगर कोई कोढ़ की बीमारी वाला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाता, आप उसके जिस्म पर हाथ रख देते, अल्लाह ताला कोढ़ से शिफा अता फरमाता। अरे यहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी मैयत के पास, किसी मैयत के बाद जो जनाजे में पड़ी होती, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां जाते और मैयत पर हाथ रखते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो मैयत खड़ी हो जाती, मैयत खड़ी हो जाती थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे आका, मैंने 3 जगह पर बताया। ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ बताया, ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ बताया। अब मेरे आका का मौजिज़ा सुनो, मेरे आका का मौजिज़ा सुनो। एक मर्तबा का वाकया है और बयान कौन करता है मालूम है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है, एक लड़की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और कहने लगी अल्लाह के हबीब कहाँ है? तो मैंने कहा मस्जिद नबी शरीफ में है, मस्जिद नबी शरीफ में है। फिर कहने लगी तुम्हारे आका के नालेन पाक कहाँ है? जूते मुबारक
कहाँ है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका की नालैन पाक मांगती है। मेरे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये रखे हुए हैं। तो वो लड़की नालैन पाक के पास गई और नालैन पाक को उठाया, सर पे रखा और सर पे रखने के बाद थोड़ा झाड़ा और झाड़ने के बाद नालैन के तलवों के नीचे जो खाक आती है उसको उठाया, एक मुट्ठी में बंद किया और लेकर के चली। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे चला, बोले देखो तो सही ये लड़की उस खाक का करती क्या है। वो लड़की लेके चली, आप कहते हैं उसके दरवाजे पर गई और दरवाजे पर जाने के बाद मैंने देखा उसके अंदर इसका बाप है, आंखों से नाबीना है। लड़की करीब जाकर के कहने लगी अरे अब्बा मैंने आपका बहुत इलाज कराया, हकीमों तबीबों के पास गई, ला इलाज हो गए, कोई दवा काम नहीं करती थी। आज मैं ऐसी चीज लेकर के आई हूँ, कसम खुदा की अगर मैंने आपकी आंखों में डाल दिया आप अखियारे बन जाएंगे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस लड़की ने मेरे आका के नालैन पाक के तलवों की खाक को हाथ में उठाया, आंख के अंदर डाला, जैसा डालना था ऐसा ही अल्लाह पाक ने रोशनी अता फरमाई। तो हमें पता कहाँ चला ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ है और यहाँ मेरे आका की नालैन की खाक है। अब आप अंदाजा लगाइए खाक कहाँ और हाथ कहाँ, हाथ कहाँ और खाक कहाँ। दूसरी बात कोई के दिमाग में आती होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, है ना भाई। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने तो कोई मुर्दा जिंदा ना कहा, ये हम सबको जिंदा करा क्या कम बात है ना। अरे मरे को जिंदा करना कोई कमाल की बात नहीं है, जिसके दिल मुर्दा हो जाए उसको जिंदा करना वो कमाल की बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर बस नहीं है, यहाँ पर बस नहीं है। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, तो अल्लाह के नबी ने कोई मुर्दे को जिंदा क्यों ना किया, कोई मुर्दे को जिंदा क्यों ना किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मुर्दे को जिंदा किया उसके हाथ भी थे, मैयत के हाथ होते हैं, उसके हाथ भी थे, उसके पाँव भी थे, उसकी आंखें भी थी, उसकी जुबान भी थी, हालांकि पूरा जिस्म उसकी पूरी बॉडी तैयार थी, बस खाली रूह निकल गई थी। ऐसी चीजों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करते। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आया, मुट्ठी में क्या लेकर के आया, कंकरिया पत्थर लेकर के आया। अल्लाह के छुपा के अबू जहल को भी मालूम था नबी वो होता है जो गैब की बात जानता है, नबी वो होता है जो गैब की बात को जानता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने आकर के अबू जहल क्या कहता है मालूम है, आप अल्लाह के नबी है तो बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये खरेखर जाहिल है, ये जाहिल है। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं बता दूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है तो वो कमाल की बात नहीं है, वो कमाल की बात नहीं है। अब तू खुद पूछ मुट्ठी में कंकरियों को, तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज है उनको पूछ, वो सामने खड़े वो कौन है। अबू जहल ने बोला, ऐसा फौरन उसकी मुट्ठी से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कंकरियों में तो न हाथ था, न पैर था, न जुबान थी, न आंख थी, न जिस्म था, न पूरी बॉडी थी, तो उनके अंदर जान आई कहां से। इससे पता चला मेरे आका जिसकी तरफ देख लेते उसके अंदर जान आ जाती थी। मेरे आका जिसकी तरफ देख लेते उसकी तरफ जान आ जाती थी। हमने देखा है जो हमारे साथ आए उनसे पूछो, हम ओहद पहाड़ पर गए, हम
ओहद पहाड़ पर गए। ओहद पहाड़ क्या चीज है? जब जंगे ओहद हुआ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए, शहीद होने के बाद 70 सहाबाए किराम को वहां दफन किया एक कब्र में। और अपने चचा जिससे मेरे आका बेहद मोहब्बत करते थे, उनको लेकर के चले। कहाँ लेकर के चले मालूम है? कहने लगे जन्नतुल बकी में ले जाकर के दफन करेंगे। मेरे आका जब अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के चले, थोड़ा चले, पीछे पलट करके सहाबाए किराम ने देखा, और क्या देखा? ओहद पहाड़ पीछे आ रहा है। मेरे आका से कहा कि या रसूल अल्लाह, ये ओहद पहाड़ पीछे आ रहा है। ओहद पहाड़ 8 किलोमीटर का है। कितना? 8 किलोमीटर का पहाड़ है वो ओहद पहाड़। मेरे आका के पीछे पीछे आ रहा था। मेरे आका करीब गए, और करीब जाने के बाद ओहद पहाड़ से कहने लगे, क्या बात है, हमारे पीछे पीछे क्यों आता है? तो ओहद पहाड़ कहते हैं, सिसकियां मार करके रोने लगा। तो मेरे आका ने उसके ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद क्या कहते हैं मालूम है? तू चाहे तो तुझे जन्नत में पहुंचा दूं। ये पावर है। जन्नत तो मेरे आका की है, जन्नत तो मेरे आका की है। मेरे आका ने कहा, तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूं। बोले नहीं, तू चाहे तो मैं तुझे सोने का बना दूं। तू चाहे तो मैं तुझे सोने का बना दूं। अगर बात याद आई तो मैं आपको बताऊंगा। तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में पहुंचा दूं, और अगर तू चाहे तो मैं सोने का बना दूं। बोले हुजूर कोई चीज ना चाहिए। तो बोले चाहिए क्या? बोले आप अपने चाचा से बेहद मोहब्बत करते हैं। बोले हाँ। बोले यहाँ मेरे बगल में दफन कर दो। बोले क्यों? बोले हुजूर आप उनसे मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बोले वो कैसे? बोले आप अपने चचा की जियारत के लिए आएंगे और मैं आपकी जियारत कर लूंगा। मैं आपकी जियारत कर लूंगा। इतना बड़ा 8 किलोमीटर का ओहद पहाड़, उसको आंखें किसने दी? उसको आंखें किसने दी? देखने की सलाहियत किसने दी? अरे जिसके ऊपर मेरे आका निगाह डाल जाते उसमें जान आ जाती थी। अब मैंने कहा था ना कि याद आएगा तो बताऊंगा। जो लोग नबी के इल्म गैब को नहीं मानते, नबी की बात को नहीं मानते, तो मेरे आका ने फरमाया था एक जमाना आएगा ओहद पहाड़ सोने का होगा। एक जमाना आएगा ओहद पहाड़ सोने का होगा। और ऐ मदीने वालों, ऐ सऊदी वालों, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए इस पहाड़ का इस्तेमाल करना। तो हमने देखा, ये देखने वाले अभी सोना निकल रहा है तो वहां लॉक कर दिया है, वहां बंद कर दिया है। बोले क्यों बंद कर दिया? मेरे आका ने फरमाया था तुम पर मुसीबत का वक्त आए तो उसका इस्तेमाल करना। बोले अभी मुसीबत का वक्त नहीं आया, अभी उसको लॉक कर दिया। 1450 साल पहले मेरे आका ने बोला था ओहद पहाड़ सोने का होगा, ओहद पहाड़ सोने का होगा। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो जुबान से निकलता है, आला हजरत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम तारीफ करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत करता है, कसम खुदा की अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये ईद मिलादुन नबी, ये जलसा, ये नाते पढ़ना, ये जुलूस निकालना, सब मोहब्बत की निशानी है ना भाई? मोहब्बत की निशानी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं मालूम है? जिसने मेरे आका की विलादत पर, मेरे आका की पैदाइश पर 1 दिरहम का भी खर्चा किया,
एक दिरहम का भी खर्चा किया, कल कयामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। कल कयामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा। अब आप अंदाजा लगाइए, हम तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं। अरे जिनका खाते हैं, जिनके कदमों में हम जीते हैं, जिनके सदके में हमको नमाज मिली है, जिनके सदके में कुरान मिला है, जिनके सदके में हमको जीने का सलीका मिला है, क्या ऐसे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलादत हम नहीं मनाते? अरे किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो टेलीफोन पर मुबारकबाद देते हैं, कोई कपड़े लेकर के जाता है, कोई सोने की चीज लेकर के जाता है, न जाने क्या क्या कर लेकर के जाता है। तेरा बच्चा जो पैदा हुआ वो भी नबी के सदके में पैदा हुआ है, सारी कायनात पैदा हुई वो भी नबी के सदके में पैदा हुई है। अरे रब क्या फरमाता है मालूम है? अगर मेरे महबूब को, मेरे नबी को मैं पैदा न करता तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता, अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। कुछ लोग कहते काय को जुलूस निकालते हो, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग, जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना हराम है। क्यों भाई? नहीं निकालना चाहिए, ये हराम है। बताओ तो सही। बोले इसके अंदर बैंड बाजा बजता है। अच्छा, ये तो शादी में भी बजता है, तो निकाह करना कैसा है? हराम है। निकाह करना क्या है? हराम है। नहीं, निकाह करना सुन्नत है, बैंड बजाना हराम है। निकाह करना सुन्नत है, बैंड बजाना हराम है। भाई कोई वलीमे के अंदर जाते, वलीमा करना कैसा है? शादी के बाद लड़के की शादी करो, शादी के बाद वलीमा करना कैसा है मालूम है? सुन्नत है ना? मेरे आका ने मस्जिद जारान हम गए थे, वहां मेरे आका ने निकाह किया और वलीमा भी किया, तो वलीमा करना सुन्नत है। कुछ लोग कहते हैं वलीमा करना हराम है। क्यों भाई? सुन्नत है, इसमें हराम कहां से आया? बोले इसके अंदर लेडिस आती है, लाली पाउडर करके आती है, बेपर्दा आती है। तुम ऐसा बोलो ना, बेपर्दा आना हराम है, बेपर्दा आना हराम है। शादी करना सुन्नत है, बैंड बजाना हराम है, बैंड बजाना हराम है। बैंड बजाने में शादी को काहे को हराम कहते हो, है ना? खाली बैंड को हराम बोलो, शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। अगर दिमाग में बात ना आती हो, कोई के नाक पर फॉर्मसी हो जाए, कील बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा कील हो गया, गुमड़ा हो गया, तुम दवा खाने जाते हो तो क्या करते हो? जरा बताओ यार, क्या करते हो तुम दवा खाने जाके? कील निकालते हो या नाक काट देते हो? क्या करते हो? खाली कील निकालोगे या नाक? हाथ पर हुआ है तो वहां से गुमड़ा निकालोगे कि हाथ काट दोगे? अरे भाई खराब चीज है उसको निकाल दो, अच्छी चीज को तुम काहे को हराम कहते हो? अच्छी चीज को तुम काहे को हराम कहते हो? निकाह करना मेरे आका की सुन्नत, वलीमा करना मेरे आका की सुन्नत, मेरे आका की विलादत मनाना सब सहाबाए किराम भी मनाते थे, सैयदना सिद्दीक अकबर भी मनाते थे, सब मनाते थे। हजरत गौसे पाक भी मनाते थे, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी मनाते थे। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है हम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह के नबी पर दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। वो नबी अपने जैसा ना समझे, नबी को अपने जैसा ना समझे। एक मर्तबा सहाबाए किराम का मजमा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ऐ अली, मैं तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता हूँ? मैं तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता हूँ? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं मालूम है? मैं अली, आप अल्लाह के नबी।
चचेरे भाई थे ना, वो चाचा बड़े अब्बा के थे, फिर भी पूछा कि मैं तुम्हारा रिश्ते में क्या लगता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अली और आप अल्लाह के नबी। जब तीसरी मर्तबा मेरे आका ने फरमाया कि अली फाइनल कर दे, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहने लगे कि हुजूर आपने 3 मर्तबा पूछा कि रिश्ता फाइनल कर दे, आज मैं फाइनल कर देता हूँ। आपने बार बार पूछा है तो आप सुनिए, मैं अली और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फाइनल कर दिया। अरे एक मर्तबा अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या अल्लाह के नबी बड़े, आप बड़े हैं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े हैं। तो जाहिर सी बात थी, आपके चचा उम्र में बड़े थे, है ना भाई, आपके चचा उम्र में बड़े थे। ये जवाब है ना, सिवाय आशिक के कोई नहीं दे सकता। अकल वाला, मोहब्बत करने वाला नहीं, सिवाय आशिक के कोई जवाब नहीं दे सकता। आपसे पूछा गया आप बड़े हैं या अल्लाह के हबीब बड़े हैं, तो क्या कहते हैं मालूम है, जरा दुनिया में जल्दी मैं आ गया वरना आका मेरे सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े तो मेरे आका है। अरे इतना इश्क, इतना मोहब्बत जब पैदा हो जाता है, अकल और मोहब्बत दोनों पीछे रह जाता है, तब जाकर के इश्क बनता है, इश्क बनता है। इश्क कैसा बनता है, इश्क जब बनता है ना तो किसी का नाम नहीं लेता। एक मर्तबा महमूद गजनवी बादशाह एक बहुत खूबसूरत कूजा लाया था, कूजा महल में रखने के लिए बहुत अच्छा कूजा लाया था। जो भी सिपाही आता और देखता कहता कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। तो जो भी तारीफ करता उसको महमूद गजनवी क्या कहता है मालूम है, पटक दे और तोड़ डाल, पटक दे उसको। बोले तोड़ा था भाई, कीमती है। दूसरा कोई आता कहने लगा बादशाह कूजा बहुत कीमती है, बोले पटक दे और तोड़ डाल। जो भी आता तारीफ करता उसको महमूद बादशाह जो है वो कहता उसको तोड़ दे। सबको ये बोला, किसी ने ना तोड़ा। इतने में अयाज आया, अयाज उनका वजीर अयाज आया और सामने आकर के खड़ा हो गया। उसकी भी निगाह पड़ी और निगाह पड़ते के साथ कहने लगे बादशाह हुजूर कूजा बेहतरीन है, कूजा बहुत खूबसूरत है। आपने कहा खूबसूरत है तो तोड़ डाल, तोड़ डाल। अयाज ने उठाया, जमीन पर पटक दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो लोग कहने लगे बादशाह के पास बैठने वाला वजीर, इतनी भी समझ नहीं है कि कूजा बेहतरीन था, कूजा नहीं तोड़ना चाहिए, ये तो पास बैठने के लायक भी नहीं है, तेरे में समझ नहीं है, कूजा नहीं तोड़ना चाहिए। तो अयाज क्या कहता है मालूम है, अकल तुम में नहीं है, अकल तुम में नहीं है। अब आप खुद सोचेंगे, अकल तुम में नहीं है, मैं तो होशो हवास में हूं, मैंने तोड़ा है, मैंने तो सिर्फ कूजा तोड़ा है, मैंने सिर्फ कूजा तोड़ा है, तुमने तो बादशाह का दिल तोड़ दिया है। हर एक को कहा था कि कूजा तोड़ दे, कूजा तोड़ दे, किसी ने ना तोड़ा। मैंने बादशाह के दिल को संभाल के लिए कूजा तोड़ दिया है। जब इतनी बात हो गई तो बादशाह जलाल में आया, जलाल में आया, बोले अयाज को सामने लाओ, कूजा क्यों तोड़ा। अब इसका जवाब सिवाय आशिक के कोई नहीं दे सकता। हमारे जैसा तो कहते तुमने तो बोला था, तुम्हारे कहने से तो तोड़ा था, है ना। हमारी अकल, जहां अकल खत्म होती है वहां से इश्क शुरू होता है, जहां से अकल खत्म होती है वहां से इश्क शुरू होता है। कहने लगे क्यों तोड़ डाला तूने, तो क्या कहते हैं मालूम है, हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई। फिर बादशाह ने कहा कि देखो ये मेरा अयाज है, मेरे कहने से तोड़ा, फिर भी कहता है मेरी भूल हो गई। जब इंसान इश्क करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है, तब जाकर के अल्लाह ताला उसे अक्ले सलीम अता फरमाता है,
अकली सलीम अता फरमाता है। तो जो नबी से मोहब्बत करता है, नबी से दिलो जान से मानता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, उसके ऊपर लाजिम है कुरान पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अरे भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। अगर ऐसा करोगे, जिसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर एक गिलास भी पानी पिलाया होगा, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका हिसाब जरूर अता फरमाएगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहते, अबू लहब ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, एक कनीज को आजाद किया था जिसका नाम सोएबा है। अबू जहल का घर और अल्लाह के हबीब का घर करीब है, आमने सामने है। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत हुई, तो एक कनीज थी अबू लहब की, एक कनीज थी, उसको पता चला कि अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो दौड़ती हुई अबू लहब के पास गई और कहने लगी, मुबारक हो तुम्हारे घर भतीजा हुआ, मुबारक हो तुम्हारे घर भतीजा हुआ। तो अबू लहब खुश हो गया, भतीजे का सुन के बहुत खुश हो गया, उंगली का इशारा किया और इशारे से कहने लगा, भतीजे के आने की खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूँ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मैंने अबू लहब को जहन्नम में देखा और क्या देखता हूँ कि अबू जहल अबू लहब जो है अपनी उंगली को मुंह में डाले हुए चूसता है। तो मैंने पूछा, क्या बात है तेरी, क्या बात है? कहने लगा, तुझे मालूम नहीं है, जब मेरा भतीजा दुनिया में तशरीफ लाया, उस वक्त मेरी कनीज जो थी वो दौड़ती हुई कहती थी कि मुबारक हो तुम्हारे घर भतीजा हुआ। तो मैंने खुशी में उंगली का इशारा किया और कनीज को आजाद कर दिया था। तो अल्लाह ताला इतना खुश हुआ और कहने लगा, भले चाहे कुछ भी करा हो, इस उंगली से इशारा किया था मेरे नबी के आने की खुशी पर, मेरे नबी के आने की खुशी पर इस उंगली से इशारा किया। तो हफ्ते में एक दिन, पीर के दिन अल्लाह ताला मुझे इजाजत देता है, ये उंगली को मुंह में डालता हूं तो हफ्ते भर का अजाब भूल जाता हूं, हफ्ते भर का अजाब भूल जाता हूं। अब जो बंदा नबी समझकर नहीं, भतीजा समझ करके कनीज को आजाद करता है, अल्लाह उसे राहत पहुंचाता है। हम तो गर्दन झुकाकर कहते हैं, आप हमारे आका है और हम आपके गुलाम हैं, आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आपस में इत्तेफाक की मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब के धंधे रोजगार में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको आपस में इत्तेफाक की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।